Indian Economy 1950-1990, Industry and Trade. This is the final part of this particular chapter, the earlier parts being 5 year plans, agricultural sector, and now the third and final part, industry and trade. Hello, dear children. As I said, uh, we will be on the final part of industry and trade in India. So, if I go ahead, I would first like you to think about 2 or 3 points that I shall be putting forward before you. So, before the Britishers came, agriculture, we were self sufficient. Industry, the Indian handicrafts were the best, considered to be the best in the world. Trade, almost with all the countries of the world. So, Britishers came and they hit us where it mattered the most to us. They hit the agricultural sector, they hit the industrial sector, and they hit our foreign trade. And this is how they did so in the agricultural sector, we have already seen. And now we shall see how they hit our agricultural sector. They hit our industry and trade. So we know that industry is extremely important because it contributes towards the provision of employment. It helps in the modernization of the economy and in the overall prosperity. So our 5 year plans place a lot of emphasis on industrial development. The first 5 year plan gave emphasis to agricultural development. Then, from the second 5 year plan onwards, our policymakers thought that it's high time that we think about developing our industries. The public and the private sectors in the industrial development were important. You remember we had adopted a mixed economy system wherein both profit motive and social welfare were important. But of these two, social welfare motive was the most important. And because social welfare was the most important, the government took upon itself, state means the government took upon itself to have an extensive role in promoting this particular sector, that is the industrial sector. There were many reasons why the state did so, why the government did so, because at the time of independence, Indian industrialists did not have money enough to undertake investment in the industrial ventures which were required at that point of time. Mind you, we required to start with our industries right from the scratch. And even if any industrialist had some money, there were hardly few, maybe if I can just name one which comes to my mind, the big name which comes to my mind are the Tatas. So Jamshedji Tata. So even if somebody had the money, India did not have a big enough market to undertake any major project by them, because by that time all resources were diverted to UK, to London, to England, and Indian masses were reeling in extreme poverty. Also, in order to keep with the socialistic pattern of society which India had adopted in the 5 year plans, the state, it necessitated that the state should have complete control of those industries which were very, very important for the economy. Well, this doesn't mean that the private sector was not there. It existed. It had to because it was a mixed economic system. But the public sector was the leading light. So, in keeping with the development of the industrial sector, we finished with our first 5 year plan in 1955, and in 1955-56 started with the second 5 year plan, and the government of India made an industrial policy which is known as the Industrial Policy Resolution 1956, IPR 1956. And I'm sure you do remember that the big name, the architect of our industrial policy, Dr. P.C. Mahalanobis. This industrial policy system was based on three principles of LQP: licenses,
quotas, and permits. And it was on this basis, IPR 1956, that the second 5-year plan was based, and in fact till 1990 it was on the basis of IPR 1956 that all our policies were made. Now, what were the features of these 5-year plans? The features of these 5-year plans mainly divided it into three categories. The industries were divided into three categories. One was the Schedule A industries. Which comprised of all those industries which were important for the economy, and they were Schedule A industries. Schedule A industries fully under the control of the central government. Schedule B industries, wherein the existing private sector could work, but whenever there was to be a new industry to be opened in this sector, it was only the central government which could do so, which with the government which could start opening up of industries. And finally, whatever industries were left open to the private sector. So I repeat, Schedule A, Schedule B, and Schedule C industries. Schedule A only with the government. Schedule B, the present government's private sector could function, but any new industries in Schedule B will be opened up by the government. And Schedule C, whatever was left after A and B, could be operated upon by industries in the private sector. But here also, these industries were not left completely free. They had to work in Schedule C. I'm talking about. They had to work under the eyes of, or under the watchful eyes of the government. Now, having said that, the next feature of IPR 1956 was, as I said, LQP, licenses, quotas, and permits. No new industry was allowed unless a license was obtained from the government. अब ऐसा किस लिए किया गया था? किसी को भी नई इंडस्ट्रीज खोलनी थी तो सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी. जैसे आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही अगर इंडस्ट्री खोलनी थी तो सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत थी. ऐसा इसलिए किया गया था जिससे कि बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, यानी जो लोग बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ेंगे, उनको लाइसेंसेस आसानी से मिलेंगे. अदरवाइज व्हाट वुड हैपन कि यूजुअली इंडस्ट्रियलिस्ट विल गो टू द एरियाज जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि वो क्यों अपना पैसा खर्च करेगा सड़कें बनाने में, क्योंकि उसका सामान आना जाना है. वो क्यों अपना पैसा खर्च करेगा कम्युनिकेशन लाइंस के लिए, क्योंकि उसको वो भी जरूरी है. तो अधिकतर इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, जहां पर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं वहीं पर जाकर के अपनी इंडस्ट्री खोलते हैं. लेकिन क्योंकि एक रीजनल इक्वालिटी बहुत जरूरी थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इसलिए उन लोगों को लाइसेंसेस आराम से दिए जाते थे या आसानी से दिए जाते थे जो कि अपनी इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड रीजन्स में खोलते थे. इसके अलावा जो इस तरह से बैकवर्ड रीजन्स में अपनी इंडस्ट्रीज खोलते थे उनको टैक्स में कंसेशंस दिए जाते थे, सब्सिडीज दी जाती थी. बिजली का खर्चा जो होता था वो कम दरों पर उनको दिया जाता था. और टैक्स हॉलिडेज इनफैक्ट इन द सेंस कि उनको ये फायदा दे दिया जाता था कि चलिए आप लोग पहले 3-4 साल या 5 साल तक बिजनेस कीजिए, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. सो द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट regional equality. In the IPR 1956 also, small scale industries were given great importance, and this was done because small scale industries are mainly employment oriented, यानी उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. 1950 में अगर आप 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए किसी यूनिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट कहा जाता था. लेकिन आज ये लिमिट तकरीबन 25 lakhs to 10 crores है in case of a manufacturing unit, and between 10 lakhs and 5 crores है in case of a सर्विस सेक्टर. कोई यूनिट जो सर्विसेज दे रहा है वो 10 लाख और
5 करोड़ के बीच में अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से स्टेप्स उठाए गए। इट वॉज इंपॉर्टेंट कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए। व्हाई वॉज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बड़ी इंडस्ट्रीज के सामने तो टिक नहीं पाएंगी कंपटीशन में। इट इज समथिंग लाइक दैट कि जब ब्रिटिशर्स का सामान यहाँ आने लगा, फैक्ट्री मेड सामान यहाँ आने लगा, तो यहाँ के गुड्स उस सामान के सामने टिक नहीं पाए। इसी तरह से इन केस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको प्रोटेक्शन दे दी गई, क्योंकि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के सामने टिक नहीं पाती। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहाँ की थी? हमारी ही थी, हमें ही डेवलप करनी थी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दिया जाना जरूरी था, जिससे कि वो दब के ना रह जाएं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के सामने। और प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किया गया? बहुत सी चीजें, बहुत से गुड्स, व्हेन आई से चीजें आई मीन गुड्स, बहुत से गुड्स ऐसे एनलिस्ट कर दिए गए जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकती थी। यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उन पर्टिकुलर गुड्स में एंट्री नहीं कर सकते थे। सो फॉर दिस पर्पस products were reserved for the small scale industries, and they were also given concessions such as lower excise duty and bank loans at lower rates of interest. So if I talk about the industries till now, so what can we say about industries? We can say that the industrial policy resolution was framed in 1956. We can say that industries were divided into 3: Schedule A, Schedule B, and Schedule C. Schedule A, only under government sector. Schedule B, existing private sector could work, but new units will be opened by the government sector. Schedule C, the rest of it was left to the private sector, but under the supervision of the governments. Then what else can we say about industries? Small scale industries were given importance, and for that many goods were reserved for small scale industries only. So this entirely in the form of industries. Now we move on to the foreign trade. And in case of foreign trade, the policy that was adopted was that of import substitution. Import substitution, I suppose these two words, if taken one by one, will clear what it means. Import. Import means what we are getting from the rest of the world, other countries of the world. Substitution, उसको substitute करना, यानी जो चीजें आप बाहर से लेकर के आ रहे हैं, विदेशों से लेकर के आ रहे हैं, उनको अपने ही देश में सब्स्टिट्यूट करना। यानी आप विदेशों से ना लेकर के उसको अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए। इन अदर वर्ड्स, दिस स्ट्रैटेजी ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज आल्सो टर्म्ड एज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। आप अपने ही देश के अंदर झांक करके देखिए कि भाई आप किस तरह से बाहर से आने वाली चीजों को कम से कम बाहर से मंगवाएं और ज्यादा से ज्यादा उनको अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करें। क्या आप 2 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि ऐसा किस लिए किया होगा? Can you give it a thought? किस लिए किया होगा? I suppose it does come to your mind. ऐसा इसलिए किया गया कि हमारी डिपेंडेंस फॉरेन गुड्स के ऊपर बिल्कुल कम हो जाए और इंडिया में जो प्रोड्यूसर है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन का मौका मिल जाए। तो ये ध्यान रखिए, 1950 से 90 तक या 1947 से 90 तक जो हमारी फॉरेन ट्रेड स्ट्रेटजी थी वो एक चीज के ऊपर, एक पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट थी, और वो थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। सो एज आई सेड that it was the industrial policy that we adopted was closely related to the trade policy, and it was the inward looking trade policy. And in this policy the government protected the domestic industries from
फॉरेन कंपटीशन हम भुगत चुके थे, इंग्लिशमैन हमारी कंट्री को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर चुके थे, हम लोग भुगत चुके थे। तो इसलिए अब ये सरकारों ने सोचा कि नहीं भाई, हमें अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करना है। और किस तरह से प्रोटेक्शन की गई? दो तरीकों से प्रोटेक्शन की गई, टैरिफ्स के जरिए और कोटास के जरिए। टैरिफ्स क्या होते हैं? एक तरह के टैक्स है जो इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया जाता है। किसी भी चीज पर जब आप टैक्स लगाते हैं तो वो उस सामान को ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है, और जब ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है तो उसका यूज डिस्करेज होता है। तो क्या किया गया? जो सामान इंपोर्ट होता था उसके ऊपर टैक्स लगा दीजिए, टैक्स लगा दीजिए, महंगा कर दीजिए, महंगा कर देंगे तो इंपोर्ट होना कम हो जाएगा, इंपोर्ट होना कम हो जाएगा तो अपनी कंट्री में ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सो दिस वाज टैरिफ। देन वी हैड कोटास। कोटा, किसी चीज का कोटा फिक्स करना, यानी किसी चीज की लिमिट फिक्स कर देना। जैसे राशन शॉप्स में जाते हैं तो इतने पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा चीनी नहीं मिलेगी, इतने पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा चावल नहीं मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा। तो ये कोटा फिक्स कर देते हैं, अमाउंट फिक्स कर देते हैं। तो हमारी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी, इसमें क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इंपोर्टेड, इसका एक कोटा फिक्स कर दिया गया, इसको एक लिमिट कर दिया गया कि बाहर से आने वाला सामान इतने अमाउंट से ज्यादा, इस क्वांटिटी से ज्यादा नहीं आएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा, ये पॉलिसी बनाई इसलिए गई थी कि नोशन क्या थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो किसी भी तरह से डेवलप्ड इकोनॉमीज के सामने टिक नहीं पाएंगी, इंडस्ट्रीज उनकी कमोडिटीज के सामने कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी। और जब तक कि हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो जाती, तब तक बहुत जरूरी था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए। और सबसे बड़ा मेन एम यही था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का। अब इसका फायदा हमें क्या मिला? जो हमारे पहले 7 प्लान्स थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, पहले 7, और मैं पहले 7 ही क्यों बोल रही हूँ? अगेन थिंक अबाउट इट, व्हाई एम आई टॉकिंग ओनली अबाउट द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स? बिकॉज एग्जैक्टली, बिकॉज टिल 1990 इंडिया में कितने 5 ईयर प्लान्स हुए थे? 7 5 ईयर प्लान्स हुए थे। सो दैट्स राइट। सो इफ ये अगर आप ये सारे तीनों वीडियोस को सुन भर लेंगे तो आपको ये पूरे चैप्टर का एक सिनॉप्सिस मिल जाएगा, which you would be in a position to know कि हर एक सेक्टर में अलग क्या क्या हुआ। So that's what I was saying, that in the first 7 5-year plans, India's industrial growth was very very impressive, और from 11.8% in 1950-51 इंडस्ट्रीज का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नियरली 25% हो गया 1990 तक। सो इट वाज अ बिग इम्प्रूवमेंट, हमारे इंडस्ट्रीज का काम बढ़ा। और जब इंडस्ट्रीज का शेयर बढ़ा जीडीपी में, तो इसका मतलब था कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रही है, बिकॉज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी जब बढ़ जाता है तो वो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है डेवलपमेंट का। अब हम वो इकोनॉमी नहीं रह गए जो सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल और जूट बेचता था, क्योंकि इंग्लिशमैन ने हमें बस उतना ही तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया था ना, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे हम लोग। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर इस दौरान 1990 तक के दौरान बहुत डाइवर्सिफाई हो गया। हम न सिर्फ एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह बनाने लगे और उसमें सेल्फ सफिशिएंट होने लगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिन पर ध्यान दिया गया था, मैंने आपसे कहा था, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज दी जिनके पास बहुत ह्यूज कैपिटल नहीं था कि वो बहुत बड़ी बिजनेस कोई शुरू करे। तो जिनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं था, वो लोग भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ चढ़ के काम करने लगे। कैसे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जरिए। और जब फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिली, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी के जरिए फॉरेन कंपटीशन से जब प्रोटेक्शन मिली, तो जो हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी इन द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स एटसेट्रा, जो कि आप सोचिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑटोमोबाइल्स एटसेट्रा में क्या हम लोग कहीं भी अमेरिकन या इंग्लैंड की या यूरोप की अन्य कंट्रियों के सामने टिक पाते? क्या हम ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं नहीं टिक पाते? तो
क्योंकि हम लोगों को ये प्रोटेक्शन दी गई थी, हमारी इंडस्ट्रीज को ये प्रोटेक्शन दी गई थी, ये बड़ा रीजन था कि हमारी इंडिजिनस ऑटोमोबाइल और इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डेवलप हुई. So as I said that every strategy will have its problems also. 1990 मैंने आपसे कहा कि 1990 तक हम पढ़ेंगे और 1990 के बाद में हम लोग दूसरे फेज में जाएंगे. तो डेफिनेटली 1990 के फेज तक इंडियन इकोनॉमी जब डेवलप हुई तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट थे, लेकिन शायद कुछ लिमिटेशंस ऐसी रह गई थी जिसकी वजह से 1990 के बाद हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ा. सो क्या ऐसी लिमिटेशंस थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी की जो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक प्रूव कर रही थी, हमारे लिए परेशानी क्रिएट कर रही थी. बहुत से इकोनॉमिस्ट ने इसे क्रिटिसाइज किया कि जो पब्लिक सेक्टर था, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हमें पब्लिक सेक्टर के ऊपर हमारी हो गई थी. ये तो डिसाइड ही नहीं कर पाए 40 साल. सोचिए आप 1950 से 1940 आई एम सो सॉरी 1950 से 1990 तक 1950 से 1990 तक तकरीबन 40 साल. और 40 साल में हम ये डिस्टिंक्टली डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी चीजें पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस करेगा और कौन सी चीजें प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करेगा. यू विल बी स्टार्टल्ड टू नो कि पब्लिक सेक्टर ने इतनी ज्यादा कंट्रोल में इकोनॉमी ले ली थी कि ब्रेड जैसी चीज, शूज जैसी चीज भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाने लगी थी. सो इससे क्या प्रॉब्लम होने लगी कि पब्लिक सेक्टर को कोई फॉरेन कंपटीशन वैसे ही नहीं था क्योंकि प्रोटेक्शन दी हुई थी. डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी पब्लिक सेक्टर जो था वो जिसे कहते हैं वो एक उसके हाथ में, जिसके कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी जो थी पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथ में ले ली. एंड व्हेन दिस हैपेंड पब्लिक सेक्टर गॉट कॉम्प्लेसेंट कि भाई हमारे तो कंपटीशन है ही नहीं कोई. सो उस वजह से इकोनॉमी में इनोवेशन की कमी आई. इनोवेशन की कमी की क्या नई चीज प्रोड्यूस की जा सकती है, क्या इसी चीज को कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बनाया जा सकता है, क्या इसी चीज की क्वालिटी को बेटर किया जा सकता है. सो ये सारी चीजें जो एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आनी चाहिए, ये जो है ये बिल्कुल उन्होंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया और पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट होने लगा, करप्शन बढ़ने लगी. आप जानते हैं लाइसेंसेस, कोटाज, परमिट्स, एलक्यूपी बहुत जरूरी था. तो इन सब चीजों के चलते क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी में करप्शन आ गई. जो लाइसेंसेस देते थे वो पैसों के बदले लाइसेंसेस देने लगे. इकोनॉमी के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम पर जो है अलग अलग बिजनेस दिखाने लगे और अलग अलग बिजनेस के लिए वो लाइसेंसेस लेने लगे, परमिट्स लेने लगे काम शुरू करने के लिए. तो कुछ ऐसे बड़े बिजनेस इंडस्ट्रियल हाउसेस सामने आए जो अंडर द टेबल इकोनॉमी को अपने हाथ में, इकोनॉमी का कंट्रोल अपने हाथ में रखने के लिए काम करने लगे. सो ये जो था ये इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सही प्रूव नहीं कर रहा था. एंड विद दिस काइंड ऑफ लिमिटेशन जो थी प्रॉब्लम्स क्रीप इन करने लगी. कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि बिकॉज इनएफिशिएंट हो गई थी पब्लिक सेक्टर, वो ह्यूज लॉस इनकर कर रही थी, लेकिन इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को बंद करना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि लाखों लाख लोग इसमें एम्प्लॉयड थे. और ऐसे में नेशन की जो रिसोर्सेज थे जो कि ऑलरेडी लिमिटेड थे उनके ऊपर बहुत बड़ा ड्रेन हो रहा था, बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा था. अगर यही कोई कंपनी प्राइवेट सेक्टर में होती और लॉस कर रही होती तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी उसको रन नहीं कर देता, बंद कर देता, तो हमारे इकोनॉमी के रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होने से बच जाते. कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, पब्लिक सेक्टर का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, पब्लिक सेक्टर का काम तो लोगों को वेलफेयर देना है. तो अगर पब्लिक सेक्टर में प्रॉफिट नहीं भी होता तो भी उसे रन करना है. खैर ये तो इकोनॉमिस्ट के आपस के डिस्कशन की बात थी. बट जो इससे प्रॉब्लम हुई कि इकोनॉमी में जो है रिसोर्सेज वेस्ट होने लगे क्योंकि पब्लिक सेक्टर ने प्रॉफिटेबली काम करना, पब्लिक सेक्टर ने एफिशिएंटली काम करना बंद तो नहीं कहूंगी, काम तो चल रहा था लेकिन उसकी एफिशिएंसी जो है धीरे धीरे कम होने लगी.
जो परमिट राज या लाइसेंस राज आ गया था, वर्ड राज, ब्रिटिश राज, है ना, तो वही रूल जो है अब LQP पॉलिसीज को भी दिया जाने लगा। ये बहुत ही दुखद था। ये दुखद क्यों था? क्योंकि इस ब्रिटिश राज से तो हमने बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया था, और अब ये जो लाइसेंस राज आ गया। So this was very, very painful because the policy of LQP was now being associated with corruption in the government sector. So regarding the protection, some economists held the view that we should protect our producers from foreign competition as long as the rich nations continue to do so. अगर rich nations अपनी industries को foreign competition से बचाते हैं तो हम क्यों ना बचाएं? हमारे लिए तो ज्यादा जरूरी है फॉरेन कंपटीशन से बचाना, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज अभी अपने नेसेंट स्टेज में थी, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हमने अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्शन दे दी। लंबे समय तक प्रोटेक्शन देने का क्या मतलब है कि यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड। अब बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो अपने आप तो नहीं चल पाता, सो द पेरेंट्स हैव टू होल्ड द हैंड एंड देन मेक द चाइल्ड वॉक। लेकिन थोड़े टाइम के बाद इफ यू वांट टू मेक द चाइल्ड इंडिपेंडेंट, यू टू लीव द हैंड। आप बच्चे का हाथ पकड़ करके बड़े होने तक चलाते रहेंगे तो वो सड़क पर चलना नहीं आएगा उसे। ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ concept can be adopted to the protection given to Indian industries. स्टार्टिंग में जब 50 में 55 56 में जब IPR आया तो इंडियन इंडस्ट्रीज बहुत ही रॉ स्टेजेस में थी, अंडर डेवलप्ड स्टेज में थी, तो उस समय प्रोटेक्शन दिया जाना जरूरी था। लेकिन धीरे धीरे आप 40 साल तक उनको प्रोटेक्शन देंगे इंडस्ट्रीज को। जैसा मैंने कहा, इसका सबसे बड़ा इल इफेक्ट ये हुआ कि इंडस्ट्रीज को कंपटीशन फेस करना आया ही नहीं हमारे यहाँ। तो वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई क्योंकि उनके सामने किसी तरह का कोई कंपटीशन ही नहीं था। अपन बाहर से तो था ही नहीं, अपनी इकोनॉमी में नहीं था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज दी नहीं हुई थी। सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज तो पब्लिक सेक्टर में थी। सो इस वजह से इस प्रोटेक्शन की वजह से जो है हमारी इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी पर बहुत बुरा असर पड़ा, और बुरा असर पड़ा इंडियन कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि उनको परचेज करना पड़ता था वॉट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर वुड गिव इट। द इंडियन consumer did not have a choice. I so very distinctly remember that when the phones, when we had to get a phone connection for the house, we literally had to wait for 2 years. I very, very distinctly remember that when I applied for the first phone connection, land phone as you say, land phone connection to my house, it came to us, it got connected after 2 years of filling up that particular form, क्योंकि और तो कुछ था ही नहीं। और आज की डेट में देख लीजिए, आपके पास दुनिया भर के फोन कंपनीज आती हैं कि आप हमारा सिम ले लीजिए, हमारा सिम ले लीजिए, हमारा सिम ले लीजिए। सो टुडे यू हैव सो मच ऑफ चॉइस अवेलेबल, यू से ओ दिस इज नॉट वर्किंग फाइन, आई शिफ्ट, दिस इज नॉट वर्किंग फाइन, और वो खुद से आपको आगे आकर के फोन करते हैं कि व्हाई डोंट यू यूज आवर सर्विसेज। At that point of time, I remember, and going to the telephone office used to be such a big hassle. इतनी 1-1 किलोमीटर लंबी वहां लाइन लगती थी just to fill up the forms. So this was the kind of services that the consumer got in at that particular point of time. So all said and done, if I conclude this entire chapter, we do know that the base for India's economy was laid in these 40 years, from say 1947 or 1950 to 1990, and this base which was laid was in 3 most important sectors. So these 3 important sectors: agriculture, industry and foreign trade. इंडिया की बेस बनी एग्रीकल्चर सेक्टर में,
आपका जो लैंड रिफॉर्म्स हुए, जमींदारी सिस्टम हटा, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हुई, सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। करिए आप लोग भी ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट ध्यान दीजिए, क्योंकि अब मैं इस पूरे चैप्टर को समराइज कर रही हूं। 5 ईयर प्लान सामने आए, 5 ईयर प्लान में मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने इस्तेमाल किया। 1990 तक 7 5 ईयर प्लान आए। गोल्स थे, लॉन्ग टर्म गोल्स थे, शॉर्ट टर्म गोल्स थे, और 5 ईयर प्लान के अंतर्गत एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की गई फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गई सेकेंड 5 ईयर प्लान से, आईपीआर 1956 आया, और उसमें फॉरेन ट्रेड के ऊपर ध्यान दिया गया थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। सो these three parts that we have that I have shared in the form of video, in the PowerPoint presentation, and also the question answers already that you have attempted, would give us a fair idea about the Indian economy till 1990. Your next topic will be post 1990 Indian economy, and for that we shall be getting into another mode of discussion. Take care till then. I'll see you soon.